والقلم وما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. ناظرین، کتنا ہی افسوس کا مقام ہے کہ سیاسی پارٹیاں اب CRPF کے نوجوانوں کو بھی سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہیں اور جنگ کے لیے بھی استعمال کر رہی ہیں. پاکستانی میڈیا نے بھارت کی حکومت پر پلوامہ حملے کے بعد یہ الزام لگاتار لگا رہا ہے اور لگاتا ہوا آ رہا ہے کہ پلوامہ حملے میں پاکستان شریک نہیں ہے، بلکہ یہ مودی حکومت کی جانب سے 2019 کے انتخابات کے لیے جنگ کی صورتحال پیدا کرنے کے لیے منصوبہ بند حملہ تھا، تاکہ مودی مخالف لہر کو دیش بھکتی میں بدل کر اور جنگ کے آڑ میں ہندوستانی عام عوام کو اصل مدعوں سے بھٹکا کر ایک بار پھر بھارت کی گدی کو سنبھالا جائے اور ہمارے ریاست کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا اور ریاست کرناٹک کے BJP ریاستی صدر نے اس طرح کا بیان دے کر مزید اس کو تقویت دے دیا ہے. اور خود ملک ہند کے عوام کی نظروں میں BJP کی نیت کو لے کر کھوٹ نظر آ رہی ہے، جیسا کہ سوشل میڈیا میں اس وقت گھمسان مچا ہوا ہے. یہ ویڈیو دیکھیے جو میرے پیچھے چل رہی ہے، اس کے بعد ہم آواز سے بھی اس کو سنائیں گے کہ یڈی نے یعنی یڈیورپا نے اب ان کے بیان کو لے کر پاکستانی میڈیا کس طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے یہ سب منصوبہ بند نتیجہ ہے 2019 پارلیمانی انتخابات میں BJP کو جتانے کا. یڈیورپا نے بیان دیا ہے کہ پاکستان پر جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے 28 سیٹوں میں 22 سیٹیں تو BJP کو جھولی میں آ ہی گئی اور مودی مخالف جو ہوا چل رہی تھی وہ اب مودی کے موافق میں آ گئی ہے. ناظرین، اس بیچ آپ جانتے ہیں کہ جس دن پلوامہ کا حملہ ہوا اس دن بھی PM نریندر مودی کو ایک شوٹنگ میں ہونے کو لے کر اپوزیشن نے یہ حملہ کیا تھا کہ ملک کے نوجوان کی موت کے باوجود یہ شوٹنگ میں رہے. ایک خصوصی شوٹنگ میں موجود تھے نریندر مودی جی اس دن. اور دوسرا معاملہ آج کا ہے کہ ایک طرف پورے ہندوستان میں پاکستان سے جنگی صورتحال کو لے کر فوج پریشان ہے، فضائیہ ہائی الرٹ پر ہے، پورا ہندوستان ہائی الرٹ پر ہے اور سوشل میڈیا میں گھمسان مچا ہوا ہے کہ فضائیہ کمانڈر ابھینندن کو واپس بلانے کی کوشش کی جائے، تو ادھر BJP اور نریندر مودی جی سیاست کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ کیا سیاست ہے ناظرین میں آگے بتاؤں گا. پہلے اس ویڈیو کو دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا یڈیورپا کے بیان کو لے کر کے کس طرح سے وہاں پر یہ ذہن سازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے پورا کا پورا معاملہ جو پاکستان پر حملہ ہوا یا پلوامہ میں جو حملہ ہوا ہے وہ سب ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے. اس کا ماننا یہی ہے. دیکھ لیجیے. ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಉಗ್ರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು 22 ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಸಾಕಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತರ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ناظرین، پاکستان کے ساتھ ہندوستان کے کشیدہ ہو رہے حالات کے پیش نظر ایک طرف کانگریس نے 28 فروری کو گجرات کے اڈلج میں ہونے والی جن سنکلپ ریلی رد کر دی ہے. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنی بھوک ہڑتال کو ملتوی کر دیا ہے. کئی سیاسی پارٹیوں نے اپنے طے شدہ پروگراموں کو منسوخ یا معطل کر دیا ہے اور دوسری طرف ہماری حکمران جماعت BJP اور PM مودی بذات خود سیاسی سرگرمیاں تیز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایسے ماحول میں جبکہ ہندوستانی فضائیہ کے ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان پاکستانی فوج کی گرفت میں ہیں، PM نریندر مودی کا تقریباً 1500 مقامات پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پارٹی کارکنان اور والنٹیئر سے خطاب کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ اب خطاب کر رہے ہیں. جب تک ہماری یہ ویڈیو آپ تک پہنچی ہوگی ان کا خطاب بھی مکمل ہو چکا ہوگا.
नाज़रीन, हैरानी की बात यह भी है कि बीजेपी लीडरान 28 फरवरी को होने वाली यानी आज होने वाली इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की खूब तशहीर की और बताया जा रहा है कि ये दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। पीएम मोदी नमो ऐप के जरिए 1 करोड़ बीजेपी कारकुनान से मुखातब होंगे और इस प्रोग्राम को मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम दिया गया है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी सदर अमित शाह बीजेपी के दिल्ली रियासती दफ्तर में प्रोग्राम को देखेंगे, जबकि बीजेपी हुक्मरान रियासतों के सभी वज़राए आला और काबीना के वजीर भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के यूपी सदर महेंद्र नाथ पांडे राहुल गांधी के पार्लिमानी हल्के अमेठी में पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा बनेंगे। जिस तरह का माहौल इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर बनाया गया है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इंतखाबी सियासत हो रही है और आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के खिलाफ सोशल मीडिया पर भरपूर आवाजें भी उठने लगी हैं और सवाल उठाए जाने लगे हैं कि पाकिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी पायलट को बहिफाजत वापस लाने की कोशिशों की जगह सियासी रोटी सेंकने में पीएम मोदी क्यों मसरूफ हैं। आप लीडर संजय सिंह ने इस सिलसिले में जुमेरात को सुबह ट्वीट करते हुए लिखा है कि ऐसे वक्त में कि जबकि हमारा एक जांबाज पायलट अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में है और सरहद पर कशीदगी बनी हुई है, हमारी फौज पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को तबाह करने में मसरूफ है। देखिए बीजेपी लीडरों के बयानात को, बहरान में सियासत बेशरम बीजेपी लीडर ही कर सकते हैं। एक दीगर ट्वीट में उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया को भी निशाना बनाया है। वो लिखते हैं कि चलो मीडिया वालों, मुल्क और फौज की फिक्र छोड़कर मोदी जी का बोत मजबूत करने में जुट जाओ और वहां सुनो पूरी तकरीर लाइव दिखाना। आज मुल्क को पता चल जाएगा कि टीवी को मुल्क की फिक्र है या मोदी के इलेक्शन की। जी हाँ नाज़रीन, समाजी कारकुन अंजलि दमानिया ने भी इस ताल्लुक से ट्वीट किया, लिखा है कि पूरा मुल्क इंडियन एयरफोर्स के हमारे बहादुर जवान अभिनंदन को लेकर मायूस और फिक्रमंद है, जबकि बीजेपी आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र हर रियासत में अपनी बूथ को मजबूत करने की कोशिशों में मसरूफ है। उन्होंने साथ ये भी सवाल पूछा है कि पीएम मोदी अपनी इस मेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को क्या मुलतवी करेंगे? क्या वाकई इस मुश्किल वक्त में मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम की जरूरत है? इसके अलावा भी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया में आवाजें उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि सियासत करने की जगह अभिनंदन को बहिफाजत मुल्क वापसी की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त क्या हाल चाल है, ये तो न्यूज़ आपने देखा जो सियासत बीजेपी और मोदी की तरफ से हुई है। कहा जा रहा है कि इस वक्त हालात अभी भी कशीदा बने हुए हैं। मैं मुख्तसर उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करता हूं। पाकिस्तान और भारत की फिजाएं के एक दूसरे के इलाकों में हमलों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अमन मुज़ाकरात की पेशकश भारत ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, ऐसा महसूस हो रहा है और जंग का खतरा बढ़ गया है। इस तरह भारत का भी मीडिया कहता है और पाकिस्तान का भी मीडिया कह रहा है। हमारे भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर हुकाम के साथ तवील इजलास किए, लेकिन ना तो इन इजलासों का कोई एलामिया जारी हुआ और ना ही मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशकश का जवाब दिया। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि इमरान खान की पेशकश से भारत मुतासिर नहीं हुआ है और कशीदगी बढ़ सकती है। भारत ने बुध को ही जंग के लिए वाज़ेह तैयारियां शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में भी इक़दामात देखे जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में भी इस वक्त पूरी तरह से जो है रेड अलर्ट जारी हो गया है, बल्कि बंद का माहौल बना हुआ है। फिजाई हुदूद की बंदिशें की गई हैं तमाम जगहों पर। कई रियासतों में भारत की फौजी नक्ल हरकत को देखा गया है और मुंबई और कराची में भी जो है पूरी तरह से हाई रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब, खैबर पुख्तूनख्वा में भी इस वक्त जो है बंद का माहौल है, रेड अलर्ट है और अमेरिका ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया हुआ है, जबकि पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तानी अवाम दोनों ये चाहती है कि अमन हो, जंग ना हो, इसलिए कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता। नाज़रीन, ये था ताज़ा हालात पे सूरत हाल जो मैंने आपके सामने पेश की है। नाज़रीन, एक दूसरी खबर इस वक्त मेरे पास बहुत ही अहम तरीन खबर है। जी हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा सुनने में, लेकिन आप बर्दाश्त कर लें और इस खबर को सुने कि ये हमारे मुल्क के भारत से वाबस्ता खबर है। नई दिल्ली की दहशतगर्दाना मामलात में बेजा गिरफ्तार 750 मुस्लिम नौजवानों को कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए मशहूर हिंदुस्तानी मुसलमानों की कदीम मुअक्कर तंजीम जमीयत उलमाए हिंद की कोशिशों से आज 25 सालों के तवील इंतजार के बाद 11 मुस्लिम नौजवानों को दहशतगर्दी के इल्जामात से नासिक की खुसूसी टाडा अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है नाजरीन के 25 सालों से बंद
बेकसूर 11 मुस्लिम नौजवानों को रिहाई मिल जाती है, उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, लेकिन हमारा हिंदुस्तानी मीडिया सोया पड़ा हुआ है। जिनकी गिरफ्तारियों को लेकर के चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि ये लोग दहशतगर्द हैं, आज जब वो बाइज्जत बरी हुए हैं तो उनके सिलसिले में एक खबर देने को भी वो ज़रूरी नहीं समझ रहा है, बल्कि वो समझता ही नहीं कि ये कोई खबर है। बहरकैफ नाज़रीन, ये उस मीडिया की बेहरा रवी कहें या उसकी बेहिसी कहें या अपनी जिम्मेदारियों से कोताही और आंखें मोड़ना कहें, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि वो खबरें आप तक पहुंचाऊं। नाज़रीन, अदालत ने मुल्ज़िमीन को नाकाफ़ी सबूत और तहक़ीक़ात के दौरान टाडा कानून के रहनुमायाना उसूलों की धज्जियां उड़ाने को बुनियाद बनाकर मुल्ज़िमीन को बाइज्जत बरी कर दिया है। बुध के रोज़ जैसी खुसूसी टाडा जज यस खाती ने मुकदमे का फैसला सुनाया, मुल्ज़िमीन ने राहत की सांसें ली और खुदा का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ही फैसला आना था, लेकिन दिन भर फैसला लिखने का अमल चलता रहा और शाम के 5 बजने के बाद फैसला ज़ाहिर होना शुरू हुआ। वाज़ेह रहे कि 28 मई 1994 को तहक़ीक़ाती दस्ते ने महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर सूबों के मुख्तलिफ शहरों से आला तालीम याफ्ता 11 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 153, 153B और 120A और टाडा कानून की दफ़ात 4145, 433 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत का बदला लेना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कश्मीर जाकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अंजाम देने की ट्रेनिंग हासिल की थी। तहक़ीक़ाती दस्ते ने मुल्ज़िमीन जमील अहमद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद इसहाक, फारूक खान, नज़ीर खान, यूसुफ खान, गुलाब खान, अयूब खान, इस्माइल खान, वसीमुद्दीन, शमसुद्दीन, शेख शफ़ी, शेख अजीज़, अशफाक सैयद मुर्तज़ा मीर, मुमताज़ सैयद मुर्तज़ा मीर, मोहम्मद हारून, मोहम्मद बफ़ाती और मौलाना अब्दुल क़दीर हबीबी को भुसावर अल जिहाद नामी तंजीम का रुकन बनाया था और उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो नासिक और भुसावल में मुसलमानों को जिहाद करने पर उकसा रहे थे और उन्होंने सरकारी इमारतों समेत दीगर अहम तंसीबात को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया था। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने इस फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि जिस तरह 25 बरस के बाद इंसाफ मिला है, वो इस अंग्रेजी कहावत को सच कर दिखाता है कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है। अफसोस की बात तो ये है कि इस पर ना तो मुल्क का मीडिया कुछ कह रहा है और ना ही वो दानिश्वर तबका ही कोई तबसरा करता है जो सेकुलरिज्म की कस्में खाता है। उन्होंने कहा कि 25 बरस का मतलब यह है कि आपने एक शख्स की ज़िंदगी की इंतहाई कीमती माहौसाल तबाह कर दिए। बिलाशबा इंसाफ मिला और एजेंसियों का झूठ एक बार फिर तशअज़बाम हो गया, लेकिन क्या इस इंसाफ से लोगों की ज़िंदगी के तबाह हुए माह व साल वापस लौटाए जा सकते हैं? मौलाना मदनी ने कहा कि बहुत अहम मसला है। आज कुछ लोग बाइज्जत बरी हुए हैं, कल मजीद कुछ लोगों को एजेंसियां झूठे इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे पहुंचा देंगी और ये मज़मूम सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने सवाल किया कि इस तरह कब तक बेगुनाहों की जिंदगियों से खिलवाड़ होता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पुलिस और एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होगी और जब तक बेगुनाहों की जिंदगियां तबाह करने वाले अफसरान को सजा नहीं दी जाती, इसी तरह लोग गिरफ्तार और रिहा होते रहेंगे और इसी तरह एजेंसियां मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां तबाह करते रहेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि सियासी पार्टियों से तो इस सिलसिले में इंसाफ की तवक्को ही फजूल है, मगर बुनियादी सवाल तो ये है कि मुल्क का सेकुलर और दानिश्वर तबका इस नाइंसाफी पर आखिर चुप क्यों है। उन्होंने आखिर में कहा कि जब तक कसूरवार अफसरान को सजा नहीं दी जाती, ये इंसाफ अधूरा है। नाज़रीन, खुसूसी टाडा जज की अदालत से 11 मुस्लिम मुल्ज़िमीन को बाइज्जत बरी किए जाने पर जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा कि हालांकि हुसूल इंसाफ में ताख़ीर हुई, लेकिन मुसलमानों के माथों पर से दहशतगर्दी का कलंक साफ होना अहम बात है। उन्होंने दिफाई वकला खुसूसन एडवोकेट शरीफ शेख और उनके रुफ़क़ा मतीन शेख, अंसार तंबोली, राजिक शेख और शाहिद नदी, मोहम्मद अरशद, हेताली सेठ व दीगर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह आसान नहीं था मामले की हर समाअत पर मुंबई से नासिक जाकर मुल्ज़िमीन का दिफा करना, लेकिन उन्होंने तमाम नामसाइद हालात का सामना करते हुए अपनी खिदमात पेश की, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। नाज़रीन, ये दो अहम तरीन ख़बरें थी जिन पर रिपोर्ट पेश करना आप लोगों के लिए ज़रूरी था आप लोगों के सामने। जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी किस तरह की जो सियासत कर रही है जंग को लेकर और किस तरह का माहौल बनाया हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है और यहाँ के हमारे हालात क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को देख कर के सिर्फ यही महसूस होता है कि वाकई 2019 की पार्लिमानी इंतखाबात के लिए
اس جنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے یا زبردستی جنگ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ پاکستان کے بھی اور ہندوستان کی دونوں عام عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ جی ہاں ناظرین، اس لیے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں جنگ ہونے سے روکیں اور دونوں حکومتوں تک یہ بات پہنچائے کہ جنگ سے صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کا یہی پیغام ہے، ہم یہاں پر اجازت دیں، اور ہمارے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون